Hello all, I Zatin welcomes you all to our YouTube channel A to Z Soft Tech. Here you will get educational videos related to NCERT subjects and technical subjects based on computer science. If you find our videos helpful to you, please like and share the videos, do subscribe the channel and hit the bell icon to get updates about new videos. To get more clarity on the topic, watch the video till the end. Please feel free to post your queries in the comment section just below the video. You can reach to us using our email, WhatsApp and Telegram channel. The link is provided in the description box below the video. You can find our video using hashtag Zatinsa, hashtag A to Z Softtech. Now, let's start with the topic. Today we'll discuss about instructions, types of instructions, format of instructions, instruction cycle and other things. In this lecture, we'll see what is an instruction basically. Instruction is a command which is provided to brain or processor. Instruction is a command which is provided to brain or processor to perform something. Now, if I say sit down, then your brain decodes it and understands that I'm saying you to sit, then you will sit. If I'm saying stand up, then your brain will decode it and you will do the needful task. Similarly, when a computer needs to perform the task, so it needs an instruction that what is to be performed. Computer will not perform anything without any instruction. Computer is a dumb device which is not going to perform any operation without any instruction. Okay, so you have to provide the instruction to perform the task. You have to provide the instructions to perform the task. In broader category, we have divided instructions in three categories. First is data transfer instructions. Data transfer instructions. Second is data manipulation instructions. Data transfer instructions, data manipulation instructions, and program control instructions. Third is program control instructions. Note it down all three types of instructions. First is data transfer instructions, data manipulation instruction, and program control instructions. As their name suggests, data transfer means the instructions which are responsible for transferring of data. ट्रांसफर कहां से होगा? एक जगह से दूसरी जगह, दैट इज ट्रांसफरिंग. दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ डेटा ट्रांसफर इंस्ट्रक्शंस. सेकंड इज डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस which are responsible for manipulation. इंस्ट्रक्शंस which are responsible for manipulation of data. मैनिपुलेशन का मीन्स क्या है? वैल्यूज चेंज करना. Data transfer instruction is responsible for transferring of data from one location to another location. Second, data manipulation instruction. Manipulation means data की value change करना. How the value of a data changes? It can be changes through addition, it can be changes through multiplication, it can be changes through subtraction, division, and other operations. Okay, so we have just categorized the instructions like those instructions which cannot change the value of data but can move the data. Listen carefully please. Those instructions which cannot change the value of data but can move data from one place to another place, that comes under the category of data transfer instruction. This is a very important topic and it is very easy. Try to understand. You will learn in the couple of minutes only. Second will be data manipulation, means those instructions which cannot move data from one place to another place but they can change the value of data. That will be data manipulation. Now third category is program control, means those instructions which cannot move, which cannot operate the values, means वो इंस्ट्रक्शंस जो ना तो डेटा को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव कराएगी, ना वो
डेटा की वैल्यू चेंज करेगी, बट जिनसे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कंट्रोल होगी, जिनसे प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन कंट्रोल होगी, उन इंस्ट्रक्शंस को क्या कहेंगे? प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस. All three instructions are cleared. Now let's see data transfer instructions. Data transfer instructions मैंने बताई, it move data from one place to another without changing data. Means सिर्फ डेटा को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेके जाएगा, वैल्यूज चेंज नहीं होगी. ओके, कहां कहां ट्रांसफर हो सकता है, ऐसा तो है नहीं वो हिंदुस्तान से पाकिस्तान लेके जाएगा डेटा को. ओके, डेटा कहां ट्रांसफर होगा? बिटवीन मेमोरी, मेमोरी टू रजिस्टर, रजिस्टर टू रजिस्टर. ओके, और इनपुट आउटपुट डिवाइस टू रजिस्टर और मेमोरी. यही लोकेशन है हमारे पास जहां पे हम कोई डेटा को मैनिपुलेट कर सकते हैं. या तो आप इनपुट यूजर से ले रहे हो, या आप इनपुट रजिस्टर से ले रहे हो, या आप इनपुट मेमोरी से ले रहे हो. सिमिलरली या तो आप आउटपुट मेमोरी को दोगे, या आउटपुट रजिस्टर को दोगे, या फिर आप आउटपुट किसको दोगे? किसी आउटपुट डिवाइस को. ठीक है, इनके अलावा तो कोई ऑप्शन है नहीं. जो ऑप्शन अगर इनके अलावा नहीं है तो हमारे पास तीन ही तरह की पॉसिबिलिटीज है जहां पर हम ये सब कर सकते हैं. ओके, नाउ some examples are given below. First one is load. First one is load. What is the meaning of load? It will load the value. It will load the value. It will load the value. Now, load the value from where? From the given location. Whether it is memory location, whether it is register location, whether it is input device location. Now listen, load instruction will never execute with output device. Load instruction will never execute with output device. Why so? Because load means you are loading data. Loading means you are providing data to processor only. एंड आउटपुट डिवाइस का मतलब या आउटपुट का मतलब ये होता है कि प्रोसेसर वो डेटा प्रोवाइड करता है. लोड में हम इनपुट की बात करते हैं, इनपुट को लोड कर रहे हैं. सो लोड इंस्ट्रक्शन हमेशा इनपुट के साथ काम करेगा. ओके, नाउ इसमें एक बीच में टर्म लिखी हुई है, दैट इज निमोनिक. एक टर्म लिखी है दैट इज निमोनिक. नाउ दिस वन. ओके, जो भी आपका एग्जीक्यूशन है, इंस्ट्रक्शन का जो भी एग्जीक्यूशन है, दैट विल टेक्स प्लेस इन निमोनिक्स फॉर्म. मींस इंस्ट्रक्शन आप पूरी इंस्ट्रक्शन नहीं लिखेंगे, आप पूरी इंस्ट्रक्शन नहीं लिखते, हम उसको एक निमोनिक से रिप्रेजेंट करते हैं. लाइक लोड को यहां पर निमोनिक दिया गया है LD. ओके, LD इज एन इंस्ट्रक्शन एंड LD इंस्ट्रक्शन के कॉरस्पॉन्डिंगली एक इंस्ट्रक्शन कोड होगा. ओके, LD इंस्ट्रक्शन के कॉरस्पॉन्डिंग इंस्ट्रक्शन कोड होगा, दैट इज आल्सो नोन एज ऑपरेशनल कोड और ऑप कोड. शॉर्ट फॉर्म में उसको ऑप कोड बोलते हैं. ओके, व्हेन वी हैव स्टडीड अबाउट ALU, in that case a 5-bit OPR was there in the control bit of processor organization of general register organization. A 5-bit OPR is there, and that OPR is nothing but the op code. Okay, operational code. What operation is need to be performed? Okay, that is op code. So the code of LD is different with the code of ST. ST is store instruction. The code of LD is different as compared with the code of ST. ST is the store. Now store means you are storing the information. Information is what? The processed data. Okay, means अब जो आउटपुट की बात हो रही है, आउटपुट को आप स्टोर करोगे. ओके, तो स्टोर जो है वो कभी भी इनपुट के साथ यूज नहीं होगा. Am I clear to everyone? स्टोर कभी भी इनपुट के साथ यूज नहीं होगा और लोड कभी भी आउटपुट के साथ यूज नहीं होगा. सिमिलरली वन मोर थिंग, लोड एंड स्टोर मींस इनपुट से, रजिस्टर से या प्रोसेसर रजिस्टर से या मेमोरी से, कहीं से भी आपने इनपुट लिया, वैल्यू लिया, उस वैल्यू को आपने क्या किया, एक प्रोसेसर रजिस्टर में लोड कर दिया. मेमोरी लोकेशन से एक वैल्यू लिया और उसको प्रोसेसर रजिस्टर में लोड कर दिया. नाउ व्हाट विल हैपन, यू आर मूविंग डेटा फ्रॉम लोकेशन टू रजिस्टर, मेमोरी लोकेशन टू रजिस्टर, और रजिस्टर टू रजिस्टर, or input to register. Data movement is there. Store means you are moving again the data from processor register to memory location or
output device or somewhere else which is mentioned over there. Okay, in both the cases data movement is there but data manipulation is not there. Data movement is there means एक प्लेस से डेटा को उठाकर दूसरे प्लेस पर रखा गया है, बट जो वैल्यू डेटा की फर्स्ट प्लेस पर थी वही सेम वैल्यू डेटा की सेकंड प्लेस पर भी थी. ऐसा नहीं है कि डेटा जो है फर्स्ट प्लेस पर एक्स था और सेकंड प्लेस पर पहुंचते ही वाई हो गया. डेटा चेंज नहीं हुआ, बस डेटा एक प्लेस से उठकर दूसरे प्लेस पर आ गया. अनदर एग्जांपल इज मूव. Another example is move. Move is an instruction which moves data from one location to another location. Okay. अगर आपका जो डेटा है वो ऑलरेडी मेमोरी में या प्रोसेसर रजिस्टर में है, इन दैट केस अब आपको क्या करना होगा, सिर्फ मूव करना होगा. मूव विल work only in between registers or only in between memories. Move is another instruction which works in between the registers. Okay. Some other examples are already given there: exchange, input, output, push, pop. Okay. For reference, just remember 3-1: load, store and move. Load, store and move sufficient है. 3 examples आप याद रखेंगे. Clear? Now second, डेटा मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस. डेटा मैनिपुलेशन का मींस क्या है, अब डेटा की वैल्यूज चेंज होंगी. वैल्यूज कब चेंज होगी, जब डेटा के ऊपर कोई ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा. ऑपरेशन कौन कौन से हो सकते हैं, 3 तरह की कैटेगरी में उसको डिवाइड किया गया है. फर्स्ट वन इज अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शंस, जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे, लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट. ओके. सेकंड इज लॉजिकल एंड बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन. लॉजिकल एंड बिट मैनिपुलेशन. लॉजिकल का मतलब क्या होगा, कंपैरिजन, एंड, और, नॉट, एक्सॉर, इस तरह के ऑपरेशन जो होंगे वो लॉजिकल ऑपरेशंस होंगे. एंड बिट मैनिपुलेशन मींस जो एक एक बिट को चेंज कराएंगे. ओके. 1 बिट ऑपरेशंस जो होंगे वो उसको बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शन कहते हैं. थर्ड वन इज शिफ्ट इंस्ट्रक्शन. शिफ्ट इंस्ट्रक्शंस आर दोज इंस्ट्रक्शंस व्हिच विल शिफ्ट द डेटा और रोटेट द डेटा, like shift left, shift right, rotate left, rotate right. Okay. Now understand in detail. Arithmetic instructions are those instructions which are performing arithmetic operations, which can perform arithmetic operations. Arithmetic operations क्या हो सकता है, increment, addition by 1, decrement, -1, add, subtract, multiply, divide, add with carry, subtract with borrow. Okay, these are the operations that are arithmetic operations. सबके लिए एक निमोनिक दिया हुआ है. निमोनिक का मतलब क्या होगा, सिंबल. निमोनिक इज नथिंग बट अ सिंबल, एंड हर एक सिंबल के कॉरस्पॉन्डिंगली एक ऑपरेशनल कोड या ऑप कोड होगा. जैसे सबका सिंबल डिफरेंट होगा, हर एक इंस्ट्रक्शन डिफरेंट है, तो उनका सिंबल डिफरेंट होगा और उनका ऑपरेशनल कोड भी डिफरेंट होगा. नो टू इंस्ट्रक्शंस कैन हैव सेम ऑपरेशनल कोड. जस्ट write down this thing and learn this thing. No two operations can have similar operational code. No two instructions can have similar operational code. Okay. अगर दो अलग अलग इंस्ट्रक्शंस हैं तो उन दोनों का ऑपरेशनल कोड भी अलग अलग होगा. नाउ टू डिफरेंट इंस्ट्रक्शंस लाइक add b, मतलब add लिया आपने a b, ये एक इंस्ट्रक्शन बनी. if you write add bc तो वो अलग इंस्ट्रक्शन है. add ab अलग है, add bc अलग इंस्ट्रक्शन है. ऐसा नहीं कि दोनों में add है तो add कॉमन हो गया तो उसका कॉमन कोड आ जाएगा, नहीं. बिकॉज एक एड्रेस अलग है. जब आप कंट्रोल वर्ड की बात करेंगे, पूरा कंट्रोल वर्ड तो तभी बनेगा जब आप a b डेस्टिनेशन और ऑपरेशनल कोड सबकी वैल्यू डालेंगे. ओके. एंड कंप्लीट जो कंट्रोल वर्ड है वो डिफरेंट हो जाएगा हर इंस्ट्रक्शन के लिए. क्लियर? नाउ नेक्स्ट इज ऐड ऑपरेशन फॉर डिफरेंट डेटा टाइप्स. अगर आप ऐड कर रहे हैं डिफरेंट डेटा टाइप्स तो किस तरीके से ऐड करेंगे. इफ यू आर एडिंग इंटीजर देन यू हैव मेंशन्ड ऐड आई. दिस इज अ कॉन्सेप्ट. एक्चुअली इट इज नॉट गोइंग टू हैपन इन अ प्रोसेसर. दिस इज अ कॉन्सेप्ट, एंड while डिजाइनिंग द प्रोसेसर will take care of this thing that add I mention कराना है या नहीं कराना. ओके. add I mention कराना है या नहीं कराना, that depends while designing the processor. Okay. add F will specifies the addition of floating numbers. add D specifies the decimal numbers. Okay.
this is just for a concept, no need to focus on that so deeply. now अगर हम डेटा मैनिपुलेशन की बात कर रहे थे, इसमें सेकंड टाइप है आपकी लॉजिकल एंड बिट, लॉजिकल एंड बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस। लॉजिकल यू नो वेरी वेल, एंड और नॉट एक्सॉर इस तरह के, ओके। बिट मैनिपुलेशन क्या होती हैं? जो सिंगल बिट के ऊपर काम करती हैं, जो सिंगल बिट के ऊपर काम करती हैं, वो इंस्ट्रक्शंस को हम बिट मैनिपुलेशन इंस्ट्रक्शंस कहते हैं। नाउ सी, एंड और एक्सॉर ये सब लॉजिकल है। बिट कौन सा होगा? कॉम्प्लीमेंट कैरी। कैरी क्या है? सिंगल बिट नंबर है। कैरी क्या है? एक बिट का नंबर है, आपने कैरी का कॉम्प्लीमेंट किया, ओके। सेट कैरी, रीसेट कैरी, सेट कैरी और रीसेट कैरी। रीसेट कैरी मतलब कॉम्प्लीमेंट कैरी, और सेट कैरी मींस 1, ओके। सेट कैरी, आप एक सिंगल बिट को मैनिपुलेट कर रहे हो, you are manipulating a single bit only, that means set carry, or it is a bit manipulation instruction, bit manipulation instruction, okay। याद रखने के लिए आप इसमें 3 याद कर लेना, ये एंड और एक्सॉर फॉर लॉजिकल, क्लियर कैरी, सेट कैरी, कॉम्प्लीमेंट कैरी। क्लियर कैरी, सेट कैरी, कॉम्प्लीमेंट कैरी, तीनों कैरी के साथ हैं, सेट, रीसेट और कॉम्प्लीमेंट, ये याद कर लो। क्लियर कैरी लिख लो या रीसेट कैरी कर दो, सेम बात है, ओके। आपने सेट कैरी करके कॉम्प्लीमेंट कैरी कर दिया, इसका मतलब आप अगेन रीसेट कैरी कर रहे हो। रीसेट कैरी करने का मतलब क्या है? आप कैरी को 0 कर रहे हो। पहले आपने सेट किया, 1 किया मतलब, उसके बाद आपने कॉम्प्लीमेंट कर दिया यानी कि 0 कर दिया, वो भी वही है कि आप उसको क्लियर कर रहे हो या रीसेट कर रहे हो, ओके। सो समटाइम्स जब आप प्रोग्राम बनाते हैं, देन यू विल सी कि एक प्रोग्राम को अलग अलग लोगों ने अलग अलग तरीके से बनाया, किसी ने इंस्ट्रक्शंस ज्यादा यूज करी, किसी ने इंस्ट्रक्शंस कम यूज करी है। सो ऐसा नहीं है कि आपका जो प्रोग्राम है वो स्पेसिफिकली इसी इंस्ट्रक्शन से बनेगा, नो। आप उसमें आगे पीछे कर सकते हो, लाइक जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया, सेट कैरी और उसके बाद कॉम्प्लीमेंट कैरी, ये दो इंस्ट्रक्शंस कंबाइन करके लिखना चाहते हो अगर, तो एक सिंगल इंस्ट्रक्शन लिख दो, क्लियर कैरी या रीसेट कैरी। नाउ वन मोर थिंग, जैसे यहां पर लिखा गया है ये क्लियर कैरी, ओके। डू नॉट पैनिक कि अगर आपको एक्चुअल वर्ड याद नहीं आ रहा, दिस इज जस्ट फॉर द रेफरेंस, यू कैन राइट एनीथिंग दैट स्पेसिफाइज द मीनिंग। मींस क्लियर कैरी लिख रहे हो, रीसेट कैरी लिख रहे हो, या फ्लश कैरी लिख रहे हो, सब ठीक है, ओके। नाउ यू आर डिजाइनिंग योर ओन प्रोसेसर, आप अपने प्रोसेसर की कोई भी इंस्ट्रक्शन रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके। नो हार्ड एंड फास्ट रूल कि आपने क्लियर कैरी लिखना था तो आपने क्लियर कैरी नहीं लिखा और आपके मार्क्स कटेंगे, नो, नथिंग लाइक दैट, ओके। वन मोर थिंग, यहां पर जो CLRC लिखा हुआ है, जरूरी नहीं है कि आप इसी को याद रखो, ओके। आपका इंस्ट्रक्शन है, आपका इंस्ट्रक्शन सेट है, आपका प्रोसेसर है। Now you can write anything until unless, listen carefully, until unless you are talking about a specific processor. We are not talking about any specific processor like कि Pentium 4 कैसा होता है, 8085 कैसा होता है, 8085 का इंस्ट्रक्शन सेट क्या है, नो। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट एनी स्पेसिफिक प्रोसेसर, then you need to follow the instruction set of the processor. If you are talking about any specific processor, then you need to follow the instruction set of that processor. But if you're talking in general, if you're talking in general, then you can write anything that just specifies the meaning. In computer architecture, the best part is we are not talking about any specific processor. We are not talking about any specific processor. So you can write the mnemonic by your own. बट ऐसा नहीं है कि आपने क्लियर कैरी के लिए निमोनिक लिख दिया ABC। ABC क्लियर कैरी को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा। आप क्लियर कैरी लिखना चाहते हो, अगर मुझे लिखना हो तो मैं CLRC लिख सकता हूँ, CLC लिख सकता हूँ, CC लिख सकता हूँ, क्लियर कैरी। तो मतलब ऐसा न्यूमेरिक निमोनिक होना चाहिए जो उसकी इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट करता हो। जो सिंबल है और जो इंस्ट्रक्शन है वो एक दूसरे से मेल खाती हो, ऐसा आपके पास होना चाहिए। Now the need of mnemonics, while we have the name of the instruction or we have the complete description of the instruction, okay. Now need is like when you are writing the program,
you need to write complete instruction. And if you have mnemonic, then you just mention the mnemonic. It is like a shorthand of the programming, easily understandable of the program. It will make the program very understandable and also very compact. Okay, one more thing, if there is an instruction like complement the carry and add it with the accumulator, like mnemonic is CMA, complement CMCA, like, okay, complement carry add accumulator, ए सिंगल ए से मैंने ऐड भी और एक्यूमुलेटर दोनों लिख दिए, CMCA. ओके, अब CMCA पढ़ते ही आपको पता लग गया वो पूरी लाइन क्या कहना चाह रहा है. ओके, सो फॉर दिस वी आर यूजिंग निमोनिक्स. निमोनिक्स जो है एक्चुअल एक लैंग्वेज है जहां निमोनिक्स में प्रोग्रामिंग होती है, एंड दैट लैंग्वेज इज नोन एज असेंबली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज. ओके, असेंबली लैंग्वेज इज अ मिडिल लेवल लैंग्वेज. मिडिल लेवल लैंग्वेज मींस जो थोड़ा बहुत प्रोसेसर की तरफ से है और थोड़ा बहुत प्रोग्रामर की तरफ से है. वन मोर थिंग, जो कंप्लीट इंस्ट्रक्शन है, लाइक आपने जिसको इंग्लिश में इंस्ट्रक्शन में लिखा है, दैट इज नॉट अंडरस्टैंडेबल बाय प्रोसेसर एट ऑल. वो प्रोसेसर नहीं समझ सकता उसको. प्रोसेसर किसको समझेगा? प्रोसेसर अपनी लैंग्वेज को समझेगा, दैट इज 0101 लैंग्वेज ओनली. एंड द प्रोग्रामर cannot understand easily 0101 because it is very complicated. It is very complicated, like a series of zeros and ones, which is what it is representing. It is quite complicated. So the solution is a middle level language. Somehow it is familiar with processor, somehow it is familiar with programmer. CMC लिखा आपने, कॉम्प्लीमेंट कैरी, ओके क्लियर है, प्रोग्रामर को समझ में आ गया. CMC पढ़ते ही कॉम्प्लीमेंट कैरी. इंस्ट्रक्शन सेट पढ़ा होगा अगर प्रोग्रामर ने, उसको इंस्ट्रक्शंस पता होंगी. लाइक सिंपल है, इफ यू आर प्रोग्रामिंग इन सी, if you are programming in C and you don't know how to write a loop, for loop या while do while loop कैसे लिखते हैं, that all are instructions. सेमीकोलन कहाँ लगाते हैं, क्यों लगाते हैं, ब्रैकेट और ब्रेसेस में क्या डिफरेंस है, ओके, ऑल दीज आर इंस्ट्रक्शंस. जब आपने सी प्रोग्रामिंग स्टार्ट की थी, एट दैट टाइम यू डोंट फेमिलियर विद द इंस्ट्रक्शंस. बहुत ज्यादा एरर्स आते थे, बहुत सिली एरर्स आते थे. वंस यू आर फेमिलराइज्ड विद द इंस्ट्रक्शन सेट और द सिंटैक्स ऑफ द लैंग्वेज, देन आपके जो नंबर ऑफ एरर्स थे वो रिड्यूस हो गए, सिली मिस्टेक्स नहीं होती थी. ओके, सिमिलरली यहां पर भी आप, अगर आप किसी प्रोसेसर, किसी स्पेसिफिक प्रोसेसर के लिए प्रोग्राम बना रहे हो, इन दैट केस आपको उस पर्टिकुलर प्रोसेसर का इंस्ट्रक्शन सेट पता होना चाहिए. ओके, इन आर्किटेक्चर वी आर डिजाइनिंग द प्रोसेसर. ओके, अभी हम प्रोसेसर की डिजाइनिंग को समझ रहे हैं. तो जब आप प्रोसेसर की डिजाइनिंग समझ रहे हो, the last topic of the previous unit was designing an ALU. okay, it means अब आपने अर्थमेटिक एंड लॉजिक ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के लिए एक सर्किट डिजाइन करना है. ओके, इट्स योर चॉइस, मैंने तब भी बताया था, इट्स योर चॉइस, आप अपने ALU से कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो. अगर आप अपने ALU में एंड और नॉट और एडिशन देना चाहते हो तो बस ठीक है, 4 बिट का ALU बहुत है. अगर आप अपने ALU में एंड और नॉट, एक्सॉर, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, कैरी, शिफ्ट, रोटेट, शिफ्ट लेफ्ट, रोटेट लेफ्ट, सब ऑपरेशन देना चाहते हो, देन आपका ALU उतना ही एक्सपैंड हो जाएगा. ओके, नाउ इफ यू आर बाइंग एनी कैलकुलेटर, सिंपल कैलकुलेटर फ्रॉम द मार्केट, एंड द शॉपकीपर सेज that this calculator will only add whole numbers, not decimal numbers, and except addition there is no operation available for this calculator. Will you buy that calculator? Not at all. Why so? Because simple calculation है, simple addition है, ये तो आप मैनुअली भी कर लोगे. Why you are using calculator? To solve complicated calculations easily. कैलकुलेटर का यूज क्या होता है? टू सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस इजीली. सो जब भी आप ALU, प्रोसेसर, कंट्रोल यूनिट, इन सब की बात करते हो, इसका मतलब क्या है कि आप एक ऐसा डिवाइस प्रिपेयर कर रहे हो, एक ऐसा डिवाइस रेडी कर रहे हो जो कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शंस पे काम करे. सिंपल इंस्ट्रक्शंस पे नहीं, कॉम्प्लिकेटेड इंस्ट्रक्शंस पे. सिंपल इंस्ट्रक्शंस पे तो काम करना आसान है. ओके, क्लियर टू एवरीवन?
Third is shift instructions. Shift instructions means which are shifting. Shifting और movement में फर्क है. Clearly इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे. Data transfer and shift दोनों इंस्ट्रक्शंस अलग अलग हैं. शिफ्ट का नॉर्मल अगर हम इंग्लिश में बात करते हैं, यार इसको यहां से यहां शिफ्ट कर दो, दैट मींस आप उसकी सिर्फ पोजीशन चेंज कर रहे हो, उसकी लोकेशंस चेंज नहीं हो रही. ओके, लाइक यार थोड़ा सा शिफ्ट होकर बैठ जाओ. ओके, लाइक वो बैठा है वहीं पर बट थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है, दैट इज द शिफ्ट. बट ट्रांसफर का मतलब क्या है? यू आर मूविंग समथिंग फ्रॉम दिल्ली टू मेरठ, यू आर मूविंग समथिंग दिल्ली टू जयपुर, यू आर मूविंग समथिंग फ्रॉम गाजियाबाद टू गोरखपुर. ओके, लाइक दिस इज द ट्रांसफर. आप लोकेशन चेंज कर रहे हो, दैट इज ट्रांसफर. ओके, बट अगर आप एक ही पोजीशन पर हो, एक ही लोकेशन पर हो सॉरी, और अपनी पोजीशन थोड़ी सी मैनिपुलेट कर रहे हो, दैट इज शिफ्ट. सो ट्रांसफर में लोकेशन का एड्रेस चेंज होगा और शिफ्ट में पोजीशन चेंज होगी, एड्रेस चेंज नहीं होगा. बिट की पोजीशन वेरी करेगी, बिट का एड्रेस चेंज नहीं होगा. वो बिट अगर एक्स एड्रेस पे है तो वो पूरा नंबर एक्स एड्रेस पर ही मिलेगा, बट हो सकता है पहले वो 10 था अब वो 01 हो, दोनों ने अपनी अपनी पोजीशन स्वैप कर ली. ओके, कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस हो सकती हैं, सुनिए. लॉजिकल शिफ्ट राइट, arithmetic shift right. I have told you in Booth's multiplication algorithm there are shift right circular and shift right arithmetic. Means arithmetic ऑपरेशन में भी शिफ्टिंग हो सकती है और लॉजिकल ऑपरेशन में भी शिफ्टिंग हो सकती है. इसी तरीके से यहाँ पर भी है. जरूरी नहीं है दोनों याद करो, आप कोई भी 2-3 इंस्ट्रक्शन याद कर लो, बहुत है. आपको समझ नहीं आ रहा लॉजिकल लिखना था, सर्कुलर लिखना था, क्या था, कोई प्रॉब्लम नहीं. शिफ्ट राइट, शिफ्ट लेफ्ट, रोटेट राइट, रोटेट लेफ्ट, सिंपल 4 इंस्ट्रक्शन है, ये याद कर लो. शिफ्ट राइट, शिफ्ट लेफ्ट, rotate right, rotate left. SHR shift right, SHL shift left, ROR rotate right, ROL rotate left. Now see, अभी तक ऊपर जितनी भी इंस्ट्रक्शंस आपने पढ़ी हैं, किसी भी इंस्ट्रक्शन में कोई ऑपरेशनल कोड गिवन नहीं है. किसी भी इंस्ट्रक्शन का कोई ऑपरेशनल कोड गिवन नहीं है. वाई सो? बिकॉज ऑपरेशनल कोड इसलिए गिवन नहीं है क्योंकि हम किसी एक स्पेसिफिक प्रोसेसर की बात नहीं कर रहे हैं. हम इन जनरल बात करें कि ये सारी इंस्ट्रक्शंस होनी चाहिए प्रोसेसर की. अगर प्रोसेसर बन रहा है तो ये सारी क्वालिटीज, ये सारे जो है ऑपरेशंस वो प्रोसेसर करेगा. नाउ इट डिपेंड्स ऑन स्पेसिफिक प्रोसेसर कि हो सकता है वो शिफ्ट राइट को एक्स वाई कोड दे, दूसरा प्रोसेसर इसको ए बी कोड दे. ओके, क्लियर एवरीवन? So next is the last part of the instruction type, that is program control instruction. As I told you earlier, program control instructions are those instructions that will neither perform any manipulation nor transfer the data. Means जो ना तो डेटा को मैनिपुलेट करेगी, डेटा की वैल्यू भी चेंज नहीं होगी, प्लस डेटा को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर लेके भी नहीं जाएगी, बट प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन सीक्वेंस को कंट्रोल करेगी. कब कौन सा इंस्ट्रक्शन किस तरीके से एग्जीक्यूट होना है, दैट विल टेक केयर बाय प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस. और वी कैन से दैट such instructions are clubbed together and set them a program control instructions. ओके, उनकी कैटेगरी बना दी और उस कैटेगरी को क्या नाम दे दिया? प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस. क्लियर? नाउ एग्जांपल ऑफ सच इंस्ट्रक्शंस आर branch, jump, skip, call, return. Okay, jump, call, skip, return. In case of C, आप लोगों ने go to statements यूज किया होगा. What is the go to statement? That is also a branch control instruction, sorry, program control instruction. अगर आप एक स्टेप की एग्जीक्यूशन कर रहे हो और आपने गो टू स्टेटमेंट लगा दिया तो सडनली गो टू के आगे जो लिखा होगा, आपने जो भी लेबल लगाया होगा, उस पर्टिकुलर लेबल पर कंट्रोल चला जाएगा और आगे की जो सीक्वेंस है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी. जब आप कोई फंक्शन कॉल करते हो तो फंक्शन कॉल में भी आपका जो सीक्वेंस है वो चेंज हो जाता है. सच इंस्ट्रक्शंस आर नोन एज प्रोग्राम कंट्रोल इंस्ट्रक्शंस. मींस आपका प्रोग्राम तो सीक्वेंशियली एग्जीक्यूट होना था, बीच में आपने कहीं पर जंप लगा दिया, जंप टू दिस एड्रेस, कॉल दिस एड्रेस. कॉल का मतलब होता है आपने फंक्शन कॉल लगाया है. ओके, फंक्शन निमोनिक्स की फॉर्म में
असेंबली प्रोग्रामिंग में भी फंक्शंस, प्रोसीजर, सब प्रोसीजर सब बनता है, बट उनको कॉल करने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट होता है। ओके, कॉल इंस्ट्रक्शन से क्या होगा, आपका फंक्शन दूसरा कॉल हो जाएगा ना। जैसे ही फंक्शन दूसरा कॉल होगा वो फंक्शन भी कहीं और स्टोर्ड है। अब जो सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन हो रही थी वो सीक्वेंस चेंज हो जाएगी, अब वो नई लोकेशन पर मूव ऑन करेगा। नई लोकेशन पर जाने का मतलब क्या है, जहां से नया प्रोग्राम आपने नया सब रूटीन बनाया है वहां से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होगी। रिटर्न, रिटर्न स्टेटमेंट क्या करती है, आपके प्रोग्राम के कंट्रोल को वापस वहीं ले जाती है जहां से वो कॉल हुआ था। तो अगेन पहले यहां से सीक्वेंशियल था, फिर आपने सीक्वेंस ब्रेक करके इसको दूसरी पोजीशन पे ले गए, वहां से सीक्वेंस स्टार्ट हुआ, फिर वहां रिटर्न लगाया तो वो उसकी सीक्वेंस ब्रेक हुई और ये वापस पहली वाली सीक्वेंस में आ गया। सो बार बार आप क्या कर रहे हो, सीक्वेंस ब्रेक कर रहे हो। बार बार क्या हो रही है, जो सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन है वो ब्रेक हो रही है। और इस एग्जीक्यूशन के ब्रेक होने का मतलब क्या है, आप प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर रहे हो, कब कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होना है। लाइक व्हेन यू राइट प्लस साइन ऑन द कैलकुलेटर इट विल परफॉर्म एडिशन, इफ यू राइट माइनस इट विल परफॉर्म सब्ट्रैक्शन। सो दोनों केसेस में वो अलग अलग जगह चला जाएगा। ओके ऐसा नहीं है कि वो आपने प्लस लगाया और वो पहले माइनस करेगा और फिर प्लस करके दिखाएगा, नहीं, वो दोनों केसेस में अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और अलग अलग सब रूटीन्स को कॉल करेंगे। व्हेन यू आर कॉलिंग सब रूटीन्स देन इट मींस यू आर चेंजिंग द नॉर्मल एग्जीक्यूशन सीक्वेंस ऑफ द प्रोग्राम, यू आर चेंजिंग द नॉर्मल एग्जीक्यूशन सीक्वेंस। ओके, सिमिलरली कुछ इंस्ट्रक्शंस ऊपर थी, वही उनके कुछ इंस्ट्रक्शंस नीचे हैं। ओके, जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो निमोनिक्स के साथ हैं। आप चाहो निमोनिक्स मेंशन करना कर सकते हो, नहीं मेंशन करोगे कुछ गलत नहीं है, बट ठीक है, हो सकता है आपको फुल मार्क्स नहीं मिले। सम अदर इंस्ट्रक्शंस आर ब्रांच इफ जीरो, जैसे ये ब्रांच के लिए है ऐसे ही बाकी सबके लिए लगेगा। जंप इफ जीरो, कॉल इफ जीरो, रिटर्न इफ जीरो। ओके, आपने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया, अगर उसका रिजल्ट जीरो आ रहा है तो आप यहां जाओ, अदरवाइज आप नॉर्मल सीक्वेंस करते रहो। फ्लो चार्ट में लगाते हैं हम डिसीजन बॉक्स में, अगर जीरो है तो ये करे और वन है तो ये करे, तो वो यही चीज है। कॉल इफ जीरो, कॉल इफ वन, ब्रांच इफ जीरो, ब्रांच इफ वन, जो भी है और आपके बाइनरी ऑपरेशंस है तो जीरो वन पे चलेगा। बनाया बाय डिफॉल्ट जीरो के लिए जाता है, क्योंकि अगर जीरो नहीं आ रहा तो मतलब पॉजिटिव नंबर है तो उसके लिए सेकंड केस अपने आप बन जाएगा। तो आपको दो इंस्ट्रक्शंस बनाने की जरूरत नहीं है इस केस में, इंस्ट्रक्शन एक ही बनाओ, ब्रांच इफ जीरो, तो ब्रांच इफ वन तो अपने आप बन जाएगा, क्योंकि जब ब्रांच इफ जीरो नो होगा दैट मीन्स ब्रांच इफ वन है। ओके, ब्रांच इफ कैरी, ब्रांच इफ नॉट कैरी, ब्रांच इफ प्लस अगर टोटल रिजल्ट जो आपका पॉजिटिव है, इफ माइनस, इफ ओवरफ्लो, इफ नो ओवरफ्लो, अंडरफ्लो। तो इंस्ट्रक्शंस हैं। ये इंस्ट्रक्शंस आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने प्रोसेसर्स में कौन कौन सी इंस्ट्रक्शंस डालना चाहते हो। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट कि आपके प्रोसेसर में ये सब होना चाहिए। ओके, simple calculators are not scientific calculators and scientific calculators can perform the operations which can be performed in simple calculators, means जो सिंपल कैलकुलेटर का काम है वो साइंटिफिक कैलकुलेटर कर लेता है, बट साइंटिफिक कैलकुलेटर का जो काम है वो सिंपल कैलकुलेटर नहीं कर पाता, बिकॉज दोनों के प्रोसेसर अलग अलग है। एक का प्रोसेसर लिमिटेड ऑपरेशंस के साथ है, एक का जो है मेजॉरिटी ऑफ ऑपरेशंस है। तो इट डिपेंड्स ऑन द प्रोसेसर, आप जैसा बनाओगे, जितनी इंस्ट्रक्शंस आप डालोगे वो उतना ही काम परफॉर्म करेगा। We'll continue with the instruction format. Next is instruction format. Now, what is the meaning of format? Format is a way of representation. Format is a way of representation. Way of representation says like अगर कोई instruction आपने लिखी है, like if any instruction is there, then that instruction is must be in its proper format. Like if I'm saying stand up, ओके और मैंने बोर्ड पर स्टैंड अप वर्ड लिख दिया, बट इसके जो अल्फाबेट्स है उनको जंबल कर दिया एंड नॉट प्रोवाइडेड यू कि ये जंबल वर्ड है, जस्ट सेइंग दैट एग्जीक्यूट दिस, यू विल नॉट अंडरस्टैंड वेरी इजीली। एकदम इजीली आप उसको नहीं समझ पाओगे, बिकॉज वो अपने प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है। फॉर्मेट मीन्स सबसे पहले एस होना चाहिए, फिर टी होना चाहिए, फिर ए होना चाहिए, फिर एन होना चाहिए। सो जो सीक्वेंस है वो प्रॉपर होना चाहिए, दैट इज द फॉर्मेट। ओके, सो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट के जो नेसेसिटी है वो ये है, अगर कोई इंस्ट्रक्शन अपने पर्टिकुलर फॉर्मेट में पैटर्न में नहीं होगी then it will be very difficult to execute that instruction, to understand that instruction। बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके,
Clear to everyone? So why instruction format is required? Why instruction format is required? So the answer is to execute the instruction clearly, to execute the instruction clearly and timely without any hurdle. The format must be followed. Moreover, if your instruction is out of format, if the instruction is out of format, or you can say that the instruction is not in the format, then processor will produce the error. Then processor will not execute the instruction and the operation will not be not get performed. Like अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाते सी लैंग्वेज में प्रोग्राम बनाते टाइम एंड लाइन की जगह, तो क्या आता है, एरर आ जाता है, बिकॉज प्रोसेसर को समझ नहीं आया, वो इंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई. इंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब होगी? जब लास्ट में एंड में एक सेमीकोलन लगेगा. ओके अगर कोई इंस्ट्रक्शन में फॉर लूप में आपने आई की जो कंडीशंस हैं उनके बीच में सेमीकोलन नहीं लगाया, इट मींस वो अपने प्रॉपर फॉर्मेट में नहीं है. तो जब तक फॉर्मेट नहीं आती तो सिंटैक्स एरर आते हैं. सिंटैक्स एरर मींस द टाइप, द स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर उसका मैच नहीं हो रहा, दैट्स व्हाई वो इंस्ट्रक्शन जो है सक्सेसफुली एग्जीक्यूट नहीं हो पा रही. ओके इन जनरल अगर हम बात करते हैं प्रोसेसर में या हार्डवेयर में, इंस्ट्रक्शन जो होती है दैट इंस्ट्रक्शन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. तो इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट में 3 पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? फर्स्ट वन इज ऑपरेशन कोड. ऑपरेशन कोड मींस ओपीआर, ऑप कोड फील्ड, क्या काम आप करना है. ओके इंस्ट्रक्शन बताएगी तो सही ना कि क्या काम करना है. ओके अच्छा, जो काम आपको करना है, कुछ मैनिपुलेशन करनी है, कुछ ट्रांसफर करना है, कुछ कोई भी आपको एग्जीक्यूशन करनी है, तो उसमें जो एग्जीक्यूशन है, जो डेटा मैनिपुलेशन है, डेटा ट्रांसफर है, जो भी ऑपरेशन है, वो किसी पर्टिकुलर ऑपरेंड पर होगा और वो ऑपरेंड किसी पर्टिकुलर लोकेशन पर होगा और हर एक लोकेशन का एक एड्रेस होता है. सो इंस्ट्रक्शन में वो एड्रेस होना भी जरूरी है. इंस्ट्रक्शन में ऑपरेशनल कोड होगा कि क्या काम करना है, कहां पर करना है, लोकेशन, दैट मींस एड्रेस. एंड थर्ड वन इज मोड. आपने एड्रेस मोड्स पढ़े थे. एड्रेसिंग मोड्स मींस अगर जो आपने एड्रेस लिख दिया ऊपर 500, बट क्या 500 से रीड करना है, 500 ही एक तरह का ऑपरेंड है, या 500 एड्रेस है उसके ऊपर ऑपरेंड है, या 500 को इंडेक्स के साथ ऐड करके फिर एड्रेस निकालना है, कैसे निकालना है. तो थर्ड वन इज मोड. Different processors, listen carefully, different processors can use these 3 fields in different manners. Means एक प्रोसेसर है, वो कह रहा है कि इंस्ट्रक्शन में सबसे पहले ऑपकोड आएगा, फिर एड्रेस आएगा, फिर मोड आएगा. दूसरा प्रोसेसर है वो कह रहा है नहीं, सबसे पहले मोड आएगा, फिर एड्रेस आएगा, फिर ऑपकोड आएगा. तीसरा प्रोसेसर कह रहा है नहीं, पहले ऑपकोड आएगा, फिर मोड आएगा, फिर एड्रेस आएगा. सो अलग अलग प्रोसेसर्स जो हैं इन तीनों के सीक्वेंस को तो वेरी करवा सकते हैं, बट ये तीनों मिनिमम नेसेसिटी है हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए. ये 3 चीजें मिनिमम नेसेसिटी है हर एक इंस्ट्रक्शन के लिए. वन मोर थिंग, जरूरी नहीं है कि ये इंस्ट्रक्शन में सिर्फ ये 3 चीजें रहेंगी. ओके इफ यू थिंक कि आप एक प्रोसेसर डिजाइन कर रहे हो और उस प्रोसेसर में कोई फोर्थ पार्ट भी होना चाहिए उसकी इंस्ट्रक्शन में, ओके तो आप अपनी इंस्ट्रक्शन में फोर्थ पार्ट लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. बट यू नीड टू स्पेसिफाई दीज 3 थिंग्स मिनिमम. ये 3 चीजें तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए. क्लियर? द सेकेंड वन इज एड्रेस फील्ड. एड्रेस सिर्फ मेमोरी लोकेशन का होगा, कभी भी किसी रजिस्टर का कोई एड्रेस नहीं होगा. प्रोसेसर रजिस्टर के एड्रेसेस नहीं होते, प्रोसेसर रजिस्टर के सिर्फ नाम होते हैं. सो एज आई टोल्ड यू, प्रोसेसर रजिस्टर डज नॉट हैव एनी एड्रेस. ओके प्रोसेसर रजिस्टर्स जो हैं उनका कोई एड्रेस नहीं होता, लाइक ए बी सी एक्स वाई जेड, ये सब उनके नाम होते हैं और हम इंस्ट्रक्शन में सिर्फ उनके नाम ही स्पेसिफाई करते हैं. ओके सो अगर कोई रजिस्टर बेस्ड इंस्ट्रक्शन होगी, अगर कोई रजिस्टर बेस्ड इंस्ट्रक्शन होगी तो उसमें हो सकता है एड्रेस फील्ड ब्लैंक और एम्प्टी जाए. ओके ब्लैंक और एम्प्टी. ठीक है. नाउ अब इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट तो आपने बता दिया कि ये 3 पार्ट एक इंस्ट्रक्शन में होने चाहिए. कौन सा पार्ट कितनी लेंथ का होगा ये कैसे पता लगेगा? लाइक मोड फील्ड कितने बिट का रखना है, ऑपकोड कितने बिट का रखना है, और एड्रेस फील्ड कितने बिट का रखना है.
ऑल दीज थिंग्स डिपेंड्स, ऐसा नहीं है कि आप अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं, इन सब की प्रॉपर कैलकुलेशंस हैं. ऑल दीज थिंग डिपेंड्स ऑन द प्रोसेसर इटसेल्फ. लाइक if your ALU if your ALU is performing 16 operations, if your ALU is performing 16 operations, तो 16 operations को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कितने बिट्स रिक्वायर्ड होंगी? 4 बिट्स. 2 raised to power 4 is equals to 16. Okay, so in that case op field मतलब operational field और opcode field, that can be of 4 bit, that can be of 4 bit. मोड, आप कितने एड्रेसिंग मोड्स आपका प्रोसेसर सपोर्ट कर रहा है? फॉर एग्जांपल आपका प्रोसेसर 8 एड्रेसिंग मोड सपोर्ट कर रहा है. ओके, आपने 8 तरह के एड्रेसिंग मोड अपने प्रोसेसर के लिए रखे हैं. 8 मोड्स को स्पेसिफाई करने के लिए या 8 नंबर स्पेसिफाई करने के लिए आपको कितनी बिट्स की रिक्वायरमेंट है? इन दैट केस यू हैव you can represent 8 using 3 bits. 2 raised to power 3 is equals to 8. Okay, 2 raised to power 3 is equals to 8. So मोड फील्ड कितने बिट का हो जाएगा? 3 बिट का. इंस्ट्रक्शन में अभी पहले 4 थी, फिर 3 हो गई, यानी कि 7 बिट हो गई है. अभी हमारा जो इंस्ट्रक्शन का फॉर्मेट है वो 7 बिट का बन चुका है. नाउ मेमोरी आपने कितनी ली है? फॉर एग्जांपल you have used memory of 512 bytes. You have used the memory of 512 bytes. So 512 bytes 512 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको कितनी बिट्स की रिक्वायरमेंट होगी? 9 बिट्स का. 2 raised to power 9 is equals to 512. 2 raised to power 9 is equals to 512. So अब आपका एड्रेस फील्ड कितने बिट का बन जाएगा? 9 बिट का. कंप्लीट इंस्ट्रक्शन कैलकुलेट करिए. 4, 3 और 9. 4 और 3 7, 7 और 9 16. तो अब आपका इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट कितने बिट का बन गया? 16 बिट का. ओके, 16 बिट के फॉर्मेट में अब आप मैक्सिमम 512 बाइट की मेमोरी, 8 एड्रेसिंग मोड और 16 ऑपरेशन आपका ALU कर सकता है. क्लियर हुआ? समझ आया? इस क्लास. सो द लेंथ ऑफ इंस्ट्रक्शन डिपेंड्स ऑन द items that particular processor supports. Okay, कितने प्रोसेसर रजिस्टर, सॉरी कितने मोड्स, कितने एड्रेसेस, कितने ऑपरेशंस, सब कुछ उस प्रोसेसर से सपोर्ट किए जाएंगे. उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी जो इंस्ट्रक्शन है उसका लेंथ कितना होगा. ओके, एज वी सी रजिस्टर एड्रेस मींस अगर कोई ऑपरेंड किसी रजिस्टर में है, अगर कोई ऑपरेंड किसी रजिस्टर में है तो हम उसको रजिस्टर से स्पेसिफाई करेंगे कि ऑपरेंड लाइक ऐड ए मींस कंटेंट ऑफ ए विल बी एडेड. ओके, अगर कोई ऑपरेंड किसी मेमोरी पर है तो हम उसको मेमोरी एड्रेस से स्पेसिफाई करेंगे. इंस्ट्रक्शन जो फॉर्मेट है उसके अंदर जो एड्रेस है दैट एड्रेस इज ऑफ मेमोरी एड्रेस ओनली. ओके, जो भी मैंने आपको बताया, कोई भी इंस्ट्रक्शन या एड्रेस जो भी स्टोर करना है आपको, दैट डिपेंड्स कि आप कितना डेटा या कितना पर्टिकुलर वर्ड साइज आप सेव करा सकते हो, एंड दैट डिपेंड्स ऑन द इट्स 2 रेज टू पावर, उसकी पावर पे डिपेंड करता है. फॉर एग्जांपल 2 रेज टू पावर 4 इज इक्वल्स टू 16. तो यूजिंग 4 बिट्स यू कैन रिप्रेजेंट 16 बिट डेटा. ओके, यूजिंग 4 बिट्स यू कैन रिप्रेजेंट 16 बिट डेटा. आप 16 बिट के अलग अलग कॉम्बिनेशंस को 4 बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हो बहुत इजीली. नेक्स्ट इज नंबर ऑफ एड्रेस फील्ड इन द इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट और अ कंप्यूटर डिपेंड्स ऑन द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इट्स रजिस्टर्स. आपका जो प्रोसेसर है, लाइक आप एक एक्स प्रोसेसर पे काम कर रहे हो, वो एक्स प्रोसेसर में आपने 3 रजिस्टर्स लिए हैं, तो आप कितने रजिस्टर्स ऑपरेशन उस पर डाल सकते हो? जब रजिस्टर 3 है तो 3 ही ऑपरेशंस डाल सकते हो मैक्सिमम. एक कोई भी इंस्ट्रक्शन है वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 रजिस्टर यूज कर सकती है, बिकॉज उससे ज्यादा रजिस्टर तो अवेलेबल ही नहीं है आपके पास. सो नंबर ऑफ एड्रेस फील्ड्स, एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन में कितने एड्रेस आपको यूज करने हैं, कितने पर्टिकुलर रजिस्टर्स आपको यूज करने हैं, दैट डिपेंड्स ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ रजिस्टर्स. ओके, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ रजिस्टर डिपेंड्स ऑन द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोसेसर. आपने प्रोसेसर को डिजाइन करते हुए वहां पर रजिस्टर रखे 10,
तो अब आपके पास 10 रजिस्टर्स हैं जिनको आप यूज कर सकते हो अपनी इंस्ट्रक्शन में, और जितने ज्यादा रजिस्टर्स होंगे उतना ही आप क्लियरली और फास्टली अपने ऑपरेशन को परफॉर्म करोगे। बट जितने ज्यादा रजिस्टर्स या लोकेशंस मेमोरी की आप प्रोसेसर के पास बनाओगे उतना ही प्रोसेसर का कॉस्ट बढ़ता रहेगा, उतना ही प्रोसेसर का कॉस्ट बढ़ता रहेगा। तो ऐसा नहीं है कि हमने 10,000 रजिस्टर बना देंगे तो हमारा काम बहुत इजीली हो जाएगा। अगर आप ऐसा करेंगे तो ऑब्वियसली उस प्रोसेसर की कॉस्ट भी बहुत ज्यादा हो जाएगी। ओके, सो आपको एक जो है साइमल्टेनियस आर्किटेक्चर ऐसा डिजाइन करना है कि जिसमें जो नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं वो भी सफिशिएंट हो और जो ऑपरेशंस है वो भी सफिशिएंटली एग्जीक्यूट होते रहे। ओके, नाउ देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सीपीयू ऑर्गेनाइजेशंस। फर्स्ट वन इज सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन। आपके पास एक रजिस्टर है जिसमें आप ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हो और वो रजिस्टर का नाम है एक्यूमुलेटर। एक्यूमुलेटर इज अ बाय डिफॉल्ट रजिस्टर ऑफ अ प्रोसेसर, जिसके अंदर आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हो वो एक्यूमुलेटर को एज अ सोर्स और एक्यूमुलेटर को ही एज अ डेस्टिनेशन मान लेता है। आपके पास एक ही रजिस्टर है एक्यूमुलेटर। ओके, आपको एडिशन परफॉर्म करना है। एडिशन हमेशा दो ऑपरेंड का होगा, एडिशन हमेशा दो ऑपरेंड का होगा। एक वैल्यू आपने मेमोरी से उठाई, दूसरी वैल्यू बाय डिफॉल्ट एक्यूमुलेटर से ले लेगा, या फिर दोनों वैल्यूज आप मेमोरी से लोगे, बाय डिफॉल्ट ऐड करके एक्यूमुलेटर में डाल देगा। ओके, सी दिस एग्जाम्पल ऑफ सिंगल एक्यूमुलेटर रजिस्टर इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट इन दिस टाइप। अब इसमें इंस्ट्रक्शन फॉर्मेट जो होगा वो किस तरीके से होगा, लाइट आपने लिखा एड एक्स, ओके, ADOX, सॉरी ADOX, ADOX मींस एड्रेस ऑफ ऑपरेंड, एक्स जो है वो एड्रेस ऑफ ऑपरेंड है। ओके, इट मींस एक्यूमुलेटर के अंदर आपको क्या परफॉर्म करना है, एक्यूमुलेटर प्लस मेमोरी लोकेशन ऑफ एक्स, एक्स जहां मेमोरी में पड़ा हुआ है वो लोकेशन उठाइए आपने ताकि वहां से एक्स मिले, प्लस एक्यूमुलेटर जो कंटेंट एक्यूमुलेटर में वो मिले, दोनों ऐड हो और रिजल्ट एक्यूमुलेटर में चला जाए। इट इज सिमिलर टू लाइक दिस, आपने लिखा ऐड बी, तो क्या होगा, a इज इक्वल्स टू a प्लस बी, वेयर a इज द एक्यूमुलेटर, वेयर a इज द एक्यूमुलेटर। और वो क्या कर रहा है, एक ऑपरेंड तो आपने स्पेसिफाई कर दिया b, दूसरा ऑपरेंड स्पेसिफाई नहीं किया, तो प्रोसेसर बाय डिफॉल्ट दूसरा ऑपरेंड एक्यूमुलेटर से ले लेगा by default. Now, in this case, two things can be there. First is या तो रिजल्ट आपका ठीक आएगा या रिजल्ट आपका गलत आएगा। अगर रिजल्ट आपका ठीक आ रहा है इट मींस आप चाह रहे थे कि वो दूसरी वैल्यू एक्यूमुलेटर से ले, बट अगर आपका रिजल्ट गलत है इन दैट केस आपने जो कैलकुलेशन परफॉर्म करनी थी या आप जो कैलकुलेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे उसमें एक वैल्यू तो बी से जा रही थी, दूसरी एक्यूमुलेटर से नहीं जा रही थी। In that case, you need to specify the location or address of register or the name of register. Limitation with the single accumulator register is that in single accumulator register, you have only one register to perform the operations. Rest all other operands and things can reside only in the memory. Can reside only in the memory. आपको हर बार डेटा मेमोरी से लेना पड़ेगा। ओके, सिंगल एक्यूमुलेटर के साथ प्रॉब्लम क्या है, हर बार डेटा आपको मेमोरी से लेना पड़ेगा और एक्यूमुलेटर के साथ परफॉर्म करके फिर वो एक्यूमुलेटर में रहेगा और आपको एक्यूमुलेटर से डेटा फिर मेमोरी में डालना पड़ेगा। सो जो स्टेप्स होंगे आपके, जो प्रोग्रामिंग में स्टेप्स होंगे आपके वो थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे, वो थोड़े से ज्यादा हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप बात करते हैं स्टैक, स्टैक की, अगर आप सी में स्टैक बनाते हैं तो स्टैक ऑपरेशंस में कुछ ज्यादा इंस्ट्रक्शंस लगती है, बिकॉज पुश पॉप सब एक ही जगह से हो रहा है तो आपको बार बार या तो वो वैल्यू हटानी पड़ेगी या सेव करनी पड़ेगी। तो पुश पॉप में आपके पास ऑपरेशंस जो है वो इंस्ट्रक्शंस जो है वो ज्यादा हो जाएंगी। वेयर एज उसी की जगह अगर आप एरे यूज करते हो, नॉर्मल एरे ऑपरेशंस, तो उसमें आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, या आप क्यू या लिंक लिस्ट यूज करोगे तो उसमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ओके, दिस वॉज योर सिंगल एक्यूमुलेटर ऑर्गेनाइजेशन जिसमें एक एक्यूमुलेटर है रजिस्टर, बाकी सब मेमोरी से ही डेटा लिया जाएगा। सेकेंड इज जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। अब आपके पास कुछ रजिस्टर्स हैं, कुछ रजिस्टर्स मतलब 7 है, 15 है, या 23 रजिस्टर हैं, 31 रजिस्टर है, दैट डिपेंड्स। जो 2 रेज टू पावर में आ रही है वैल्यू उससे एक कम, जो 2 रेज टू पावर में आ रही है, लाइक 2 रेज टू पावर 3 इज 8 तो 7 रजिस्टर होने चाहिए, 2 रेज टू पावर 4 इज 16 तो 15 रजिस्टर होने चाहिए, 2 रेज टू पावर 5 इज 32 तो 31 रजिस्टर्स होने चाहिए। वाई सो, बिकॉज
द नेक्स्ट वन विल बी द डायरेक्ट इनपुट, जो आप इनपुट डिवाइस से ले सकते हो. ओके, नाउ इन दिस केस यू हैव sufficient amount of registers with you. You have multiple registers. Okay, multiple registers means आपके पास like simple अगर हम बात करते हैं like 7 registers हैं आपके पास. इससे पहले वाले में कितने registers पढ़े थे आपने? इससे पहले वाले में कितने रजिस्टर पड़े हैं अभी? सिंगल एक्यूमुलेटर, एक ओनली सिंगल वन, एक ही एक्यूमुलेटर है, उसी में रजिस्टर उसी में ऑपरेशन परफॉर्म होगा, फिर वैल्यू उसी में डालनी है और उसी में से निकालनी है. नाउ इन कंपैरिजन टू दैट अब आपके पास तीन रजिस्टर्स है लाइक R1 R2 R3. अब आपके पास तीन रजिस्टर्स है R1 R2 R3 और आपको एडिशन करना है. सिंपल है. जो सबसे पहला है दैट इज द डेस्टिनेशन, जो सेकंड है दैट इज द सोर्स 1, जो थर्ड है दैट इज द सोर्स 2. नाउ इट डिपेंड्स ऑन द आर्किटेक्चर. इट डिपेंड्स ऑन द आर्किटेक्चर. आप चाहो तो R1 सोर्स हो सकता है, ओके, R2 सोर्स हो सकता है, R3 डेस्टिनेशन हो सकता है, R1 डेस्टिनेशन हो सकता है, R2 R3 सोर्स हो सकते हैं, R1 R3 सोर्स हो सकते हैं, R2 डेस्टिनेशन हो सकता है. दैट इज डिपेंडिंग, प्योरली डिपेंड्स ऑन ओनली ऑन द आर्किटेक्चर. जिस तरीके से आपने बनाया सिर्फ उस तरीके से ही आप उसको यूज करेंगे. क्लियर हुआ? Now, if you have ample amount of registers, so you can easily perform your operations. In the first example, there are three registers R1, R2, R3. It means you have different sources and different destination. In second case, there is R1, R2. Only two registers are there. It means these two are the sources and one of these two may be the destination, and one of uh, in one of these two will be the destination, like R1 plus R2 and result will be goes into R1 only. Again it depends on you. आप चाहो तो यहाँ पर ये भी लिख सकते हो that R1 R2 and result is going in R2. Nothing is incorrect here. आप चाहे वो लिख सकते हो. इट मीन्स आपका जो आर्किटेक्चर आपने जो थ्योरी प्रोड्यूस की है उसमें आप R2 को एज एन एक्यूमुलेटर परफॉर्म करा रहे हो. जो मेरे पास एग्जांपल लिखा हुआ है, इस एग्जांपल में मैंने R1 को एज एन एक्यूमुलेटर लिया है कि वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा एंड R1 में वैल्यू डाल देगा. थर्ड एग्जांपल समझते हैं. मूव R1, R2. इट मींस यू आर मूविंग value from one register to another register, whether it is R1 R2 or it is R2 R1. R2 से वैल्यू R1 में जा रही है और R1 से R2 में जा रही है. देखिए here it is clearly mentioned, it means R2 to R1 first, transferring R2 to R1. एरो जिसकी तरफ है, जो एरो का मुंह है, इट मींस वो डेस्टिनेशन है. ओके, सो R2 से वैल्यू R1 में जा रही है और R1 से वैल्यू R2 में जा रही है. प्योरली डिपेंड्स ऑन द पर्टिकुलर कंप्यूटर. नाउ हो सकता है आप अपने एग्जाम पेपर में R2 एरो R1 कर रहे हो, R1 की तरफ डेटा ट्रांसफर हो रहा है, पीछे वाला ने R1 एरो R2 लिख दिया. आपने चांसली उसका देखा एंड आपने भी अपना काट के उसके जैसा लिख दिया. बट ध्यान दीजिएगा कि जो स्टार्टिंग से आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, कैलकुलेशन लगा रहे हो, लॉजिक लगा रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग परफॉर्म करना है. ऐसा नहीं कि कुछ जगह अपना लगा दिया, कुछ जगह मेरा लॉजिक लगा दिया, कुछ जगह पीछे वाले का लगा दिया, कुछ जगह आगे वाले का लगा दिया. ओके, सो थिंक केयरफुली एंड देन परफॉर्म. ओके, इन दिस केस टू एड्रेस फील्ड्स आर देयर. एड्रेस फील्ड्स कौन कौन सी हुई? R1 एंड R2. क्लियर टू एवरीवन? नाउ थर्ड वन इज स्टैक ऑर्गेनाइजेशन. स्टैक ऑर्गेनाइजेशन मींस जो प्रोसेसर में मेमोरी है वो आपने एज अ स्टैक जो है लगाई हुई है. एज अ स्टैक लगाने का मतलब क्या होता है? इन केस ऑफ स्टैक यू कैन परफॉर्म पुश एंड पॉप. You can perform push and pop, and both the operation takes place only on the single location, that is known as top of stack. उसी लोकेशन को आप इंप्रूव करेंगे, बढ़ाएंगे, इंक्रीज करेंगे इन केस ऑफ पुश, उसी को आप डिक्रीज करेंगे इन केस ऑफ पॉप.
नाउ अगेन इट इज डिपेंडिंग ऑन द आर्किटेक्चर दैट पुश के केस में आप लोकेशन बढ़ा रहे हो या लोकेशन घटा रहे हो। मींस हो सकता है कि आपने मेमोरी को 1 से लेकर 64 तक लिखा है और दूसरे ने 0 से लेकर 63 तक लिखा है। सो इन बोथ द केसेस जो एड्रेसेस हैं वो अलग अलग हो गए। 0 से 1 का अलग, 0 से 63 का अलग होगा और 1 से 64 का अलग होगा। ओके, नाउ किसी ने हो सकता है टॉप टू डाउन लिखा हो एड्रेसेस, किसी ने हो सकता है बॉटम टू टॉप एड्रेसेस लिखे हो। सो अगेन इन दैट केस, so now in this case what will happen, if someone is writing the addresses from top to down and someone is writing from bottom to top, in both the cases the implementation and the addresses may be different, because in one case for push operation address need to be incremented and for another case the for push the address need to be decremented. Similarly for pop, so it depends on the implementation, how you are implementing your stack, so do not worry कि मैंने तो प्लस कर दिया और मेरा गलत हो गया, इसने माइनस कर दिया इसका सही हो गया। ऐसा नहीं है। अगर आप एड्रेसेस को जिस ऑर्डर में लिखेंगे उसी पर्टिकुलर ऑर्डर से आपको वो ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। ओके, I have shared a playlist, YouTube playlist with you all. This was the stack organization. Okay. Now in upcoming lecture, next lecture we'll discuss the types of format. Well, this is all for today. Thank you very much for your patience listening. Please feel free to ask for queries. You can find our contact information in the description box just below the video. Thank you once again. Have a nice day. Thank you.